So in short, uh, from scratch, this company has grown, and fortunately, I've been the co-founder of this company. Got to learn so many things from the market side. Market has been, up and down in these 5 years, which taught us a lot about the market. So yes, this is all about us. Thank you, sir. So, we will be starting with the conversation now. If you guys have any questions during the conversation, feel free to drop them in the chat box. We'll be answering them at the end. So, in India, chai is more than just a cup of tea, it's a ritual. Chai is loved through the length and breadth of India and is amongst the most popular drinks today. So, can you share us the story of how building the Chai Sutta Bar began? See, Like, every, we had the limited capital of 3 lakh rupees. Anand had this capital, क्योंकि वो पहले से भी एक बिजनेस करता था कपड़े का. So he had his this much money. और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं दिल्ली से came back to इंदौर. वहाँ पे I started this with Anand. So chai, we chose chai because chai was already in the demand. Chai is already in the demand. Chai इतना ज़्यादा लोग पीते हैं. It is the highest consumed beverages on planet after water. पानी के बाद सबसे ज़्यादा पी जाती है. So it is already in the demand. So उसके लिए अपने कुछ ज़्यादा marketing करने की आवश्यकता नहीं थी. So we started with chai. We chose chai. और जो हम लोग के पास कैपिटल थी, तो हम लोग चाय ही बेच सकते थे. उसके अलावा हम लोग कर क्या सकते थे. So we chose chai. और फिर उसके बाद में we added the edge point. Why? How we can be the different from the other tea sellers. So we added this kullad in it, and apart from kullad, we added this flavors in it. So we had 7 flavors currently. At that time, we started with one. Currently, we have 7 flavors, and that kullad tea we started selling it for rupees 7. Now we are selling it for 10 rupees. And currently, we are the largest seller of Cooler tea in the entire world. Nobody sells us more than us. We are selling currently 3 lakh Cooler tea in a day. we have heard that chocolate tea is the famous of Chai Sutta Bar. Yes, we started with chocolate chai only. See, because we wanted to create the edge. हम लोग बाकी लोगों से अलग कैसे हैं? हर कोने में चाय बिकती है, अलग कैसे हैं? लोग हमारे पास में क्यों आएंगे? So एक edge factor होना चाहिए. So we introduced the chocolate chai then. So, we have heard about your first marketing technique of opening a shop in front of girls' hostel. It was a very interesting one. Any other marketing technique you would like to share with us? Yes, opening shop near the girls' hostel. Reason being because it is natural attraction towards a man for a woman, and women for a man is a natural. So we use this tactic, and we fortunately somehow able to catch the women customers first. And एक बार लड़कियां हम लोग के वहाँ पे outlets में आ गए, तो लड़के अपने आप ही आने लगे. So this was the market tactic which we use. The name itself was the marketing tactic, क्योंकि एक लोगों के अंदर एक curiosity develop करता है. What is चाय सुट्टा बार? Different name. एक बार आदमी सुनता है तो लगता है कि यार क्या है ये, different है. तो हम लोग इसलिए नाम भी चाय सुट्टा बार रखा. और एक बार आदमी इग्नोर कर देगा, दूसरे बार उसको वापस से लगता है कि क्या है यार, ये मैंने सुना हुआ है. तो हम लोग क्या करते थे, मी एंड आनंद यूज्ड टू गो क्राउडेड प्लेस, जहाँ पे भी भीड़ रहती थी, मॉल्स हो गए, जहाँ पे भी लोग भीड़ रहती थी, आपस में बात करते थे हम लोग आपस में कि यार वो सुना है चाय सुट्टा बार बहुत चलता है, नया खुला है, यहाँ पे खुला है. सो वी यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर लाइक दिस. आपस में हम लोग अपनी बड़ाई करते थे कि चाय सुट्टा बार बहुत अच्छा चल रहा है, खुला हुआ कहीं पे सुना है हमने, चलते हैं, चल देख के आते हैं क्या. तो लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होने लगी कि क्या है ये चाय सुट्टा बार, इसके बारे में लोग बात करते हैं. एंड द थर्ड मार्केटिंग टेक्निक विच वी प्लेड इज, हम लोग ने अपने दोस्तों को ही वहीं पे अपने आउटलेट पे बुला लिया. तो जब लोगों को लगने लगे कि यार इतनी भीड़ कैसे लगती है यहाँ पे, उनको नहीं पता था कि मेरे दोस्त ही अकेले हैं, कुछ काम नहीं है, यहाँ पे आ जाते हैं, फ्री में चाय पीते हैं, और बगल में गर्ल्स हॉस्टल था तो इसलिए भी आ जाते हैं. तो लोग लगने लगे इतनी भीड़ क्यों लगती है यहाँ पे. सो उस भीड़ से भी लोगों के अंदर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट डेवलप हो गया कि यार इतनी भीड़ लगती है, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा देता होगा. सो वी गॉट द एक्सपोजर ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल एट दैट टाइम. सो दीज वर द इनिशियल मार्केटिंग टेक्निक व्हिच वी प्लेड. Nice. Nice to hear that. So Chai Sutta Bar didn't go through funding rounds and it was bootstrapped, right? So how did you manage the financials? Uh, we didn't know about the funding initially. We heard, obviously, funding is a very fancy word. We heard it a lot since we are in the startup community. So we are hearing it on the daily basis, thrice a day.
So actually, what funding exactly means, and how when you require funding, when you are expanding, because we are into the franchisee business mostly in the FOFO model, franchisee and franchisee operated, which doesn't require that much capital because you are giving the franchisee to someone, so he has to invest in this in that particular outlet. तो जब उनको इन्वेस्ट करना है तो आपका इन्वेस्टमेंट लगता नहीं है, एल्स यू गेट द मनी फ्रॉम द फ्रेंचाइजी फीस. तो हम लोग को वहां पे पैसे नहीं लगे. इनिशियली हम लोग ने बहुत पैसे बर्न कर दिए. हम लोग को पता नहीं था. हम लोग को लगा था 3 लाख रुपए बहुत होते हैं. इनफैक्ट सच में भी बहुत होते हैं. लेकिन जब आप बिजनेस करने आते हो तो आपको पता नहीं चलता कहाँ खर्च हो जाते हैं पैसे. सो वी सफर्ड द कैश बर्न इनिशियली. लेकिन टचवुड बिकॉज दोस्त बहुत अच्छे थे, नेटवर्किंग अच्छी थी हम लोग की, तो वी गॉट द क्रेडिट. जैसे कि हम लोग ने जो हमारा दोस्त था उसके यहाँ पे उसकी हार्डवेयर की कंपनी वो है, शॉप है, तो वो पेंट बनाता था. तो जो भी पेंट उसके यहाँ पे मिक्सचर में खराब हो जाता था, वी यूज दैट पेंट फॉर द इंटीरियर्स इन आवर शॉप इनिशियली, एंड वी टुक द क्रेडिट फॉर फ्रॉम देम. तो वो हम लोग को बहुत हेल्पफुल हुआ इनिशियली. तो दीज आर दी स्मॉल स्मॉल जुगाड़ विच प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन इनिशियल टाइम. Yes, I've heard about one more thing that like the first headboard you made of as a tower is like normal paint on the. Yes, we made it. We got one ply of one hand Uh, size, and I wrote it down with the color watercolor in it. So still it is there in the head office. अभी भी हम लोग head office में वो लगा हुआ है. It is very important. I mean, it gives us preserved as a goosebumps. memory. Yes. So this is how we played. पहले initially तो हम लोग के पास में बोर्ड लगाने के पैसे थे नहीं ना. तो क्योंकि there are n number of types of board which used to come. It is coming right now. मतलब बहुत तरीके के हैं, जैसे कि acrylic letter, functional acrylic letters, glow shine, star flex. तो हम लोग के पास में पैसे नहीं थे, तो हम लोग ने सोचा है इतने महंगे लगा नहीं पाएंगे, 150 रुपए स्क्वायर फीट कैसे लगा पाएंगे. तो हम लोगों ने 1.5 महीने तो हम लोग उसी में चले गए. हम लोग बिना दुकान नाम के थे, तो हम लोग को गुमनाम टी स्टॉल से भी जाना जाता था इनिशियली. So next question. The most significant problem you faced in your entire journey till now, and how did you manage to solve it? प्रॉब्लम्स एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. आई मीन कैसे बताऊं कि किसी प्रॉब्लम्स का कुछ वो नहीं है कि कौन सी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी. द बेसिक नेचर ऑफ अ बिजनेस इज, डेफिनेशन ऑफ अ बिजनेस इज टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. बिजनेस मॉडल ही होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो वो बिजनेस मॉडल होता है बेसिकली. सो देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इनिशियली बिकॉज वी आर इन द ऑफलाइन बिजनेस. पुलिस, लोकल गूंस, लोकल पॉलिटिशियंस. सो ये सारे तो बहुत प्रॉब्लम हम लोग को गए. एंड प्रॉब्ली वी आर दी यंगेस्ट कंपनी इन इंडिया जिसके पास में 2 बार नार्कोटिक्स के छापे भी पड़े. सो वी हैव गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स. छोटे छोटे 21-22 साल में हम लोग कोई चीजें समझ में भी बहुत कम आती थी. कि why us? I mean, we have never done anything wrong. We are not selling even alcohol. We are selling something which is very normal in Indian family. मतलब चाय is the basic necessity sort of. तो हम लोग वो चीज सेल कर रहे थे. Then why us? So we have gone through all these problems, and the solution to this is you just keep going. Solve the one problem, keep going. If the problem will keep coming, and you have to keep going. तो दिक्कतें तो आती हैं. You have to just move ahead and solve that problem which came. So एक question है attendees में से, like what is your business model? Is it inspired from Starbucks? Starbucks franchisee नहीं देता है basically, and Starbucks is the inspiration. There is no doubt in it because Starbucks it's a big giant company led by Tata in India. So of course it's a big inspiration for us. But we learn from so many other companies as well, like Starbucks, like CCD. But Starbucks and CCD majorly caters the class community. The people, those who have good spending capacity. But we are targeting the masses here. क्लास को नहीं, हम लोग मास को टारगेट करते हैं. एंड सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन us and them. So knowing what you know now, like there is anything what you have done differently when you were first starting out, like ऐसा कोई change अगर आप कर सकते हैं अभी तक? I would have started early, I think, in my early 20s or in
the teenager. But I think what I heard happens for the good. So whatever the mistakes we have committed, whatever the time we took, it is a learning experience for us. शायद जल्दी करते तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम रहता तो बिगड़ जाती बात. लेट चालू किया तो ठीक है. 21 is a good age, I think. So there is nothing I wanted to change. तो होता है, अच्छे के लिए होता है. True that. What will Chai Sutta Bar be aiming for in the upcoming years? Well, in the next 5 years, we are planning to expand globally. We are expanding globally right now also. And in the next 5 years, we are planning to open at least one outlet in each country. If not in every city, then 100% in every country. We are trying our best. Like, I have one more question, then we'll move on to attendees' question. You sell the same product in Dubai, Oman, and India. So, do you change your product according to the customer's need in Dubai, or you keep the same product? No, we have to change according to market. हम लोग को जैसा देश वैसा भेष बनना पड़ता है. No, we have to act according to the market. हम लोग के यहाँ पे भी कहावत है कि कोस में ना भाषा और स्वाद दोनों बदलते हैं. So हम लोग को उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना रहता है. Whereas when it comes to the chai or tea, the form of tea may change in the different countries, but the intake is slightly higher than when it comes to the country we are living in. For example, we Indians think that we consume a lot of tea, but when it comes to the ranking, we comes to the 28th rank. है ना, 28वें पद पे हम लोग आते हैं. तो हम लोग काफी और भी ज्यादा देश हैं. फॉर एग्जांपल टर्की, यूके, and followed by the other countries. These countries have much more consumption as compared to us. So हम लोग चेंज करते हैं, प्राइजेस में चेंज करते हैं. जैसे कई लोग फॉरेन कंट्रीज में लैक्टो इंटॉलरेंट रहते हैं, तो हम लोग वहाँ पे मिल्क बेस के जगह वाटर बेस्ड टी हम लोग प्लान कर रहे हैं. हर जगह पे चाय के फॉर्म, दूध के फॉर्म से अलग रहते हैं. कई जगह फैट मिल्क, फिर उसके बाद कई लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं तो शुगर फ्री पीते हैं. तो हम लोग उनके लिए शुगर फ्री, जैसे फॉर एग्जांपल इन दुबई वी आर यूजिंग there are two types of primarily milk available in Dubai. One is Rainbow, and other is Almarai. So we are using the premium one, that is Almarai, and we are selling for 1 dirham. Nobody sells it cheaper than us in the entire Gulf, and that too in cooler, imported from India. So these are the edge factors, and the different. We are making these slightly different, product ranges and their forms in the different markets. So that they fit into that. So attendees, you may go ahead and unmute yourselves and ask your questions, or we can also take the questions from the chat box. So I don't think so anyone is unmuting. Okay. Sir, comparing your venture with MBA Chaiwala, sir, he is growing his network as a business guru, which is automatically marketing his product. Sir, what is your marketing vision or ideology? See, we're talking about Praful. I think he's a good friend of mine. How we are different from him is that he has recently started having very good marketing tactics. Currently, he's using the net, internet very well. But धंधा सिर्फ नेट में नहीं चलता, जमीन में भी चलता है. So when to the marketing ना सोशल मीडिया से तो होती है, लेकिन मौखिक जो होती है ना, जो कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो तो बहुत स्ट्रांग होती है. सो वी आर वर्किंग ऑन द माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, वी आर वर्किंग ऑन द आउटलेट्स. हमारे आउटलेट्स में आपको भीड़ दिखेगी, उसके लिए मार्केटिंग करने की हमको जरूरत नहीं है. मे बी दैट्स द रीजन सर, हमारे छोटे से शहर में जहाँ तक मैगडी पब और पिज्जा हट नहीं खुल पाया, वहाँ चाय सुट्टा बार है. कौन सी सिटी की बात कर रहे हैं आप? सहारनपुर सर. अच्छा, सहारनपुर में. एंड आई होप इट इज वर्किंग अमेजिंग देयर. Yes. In the initial days, मतलब वहाँ तो ऐसे लाइन थी कि बाहर 2-2 घंटे लोग खड़े रहे, क्योंकि we were new with that brand ना. So well, that is the answer to your question. I think we are working very firmly and very very focused on the ground.
Yeah. So, sir, another question was that, sir, इतना मतलब like you were preparing for the UPSC, बट सर जब आप बंदा यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करता है वो ऐसी उसी टाइम करता है जो उसे पता है कि लास्ट यार कोई ऑप्शन नहीं है, मे बी प्लेसमेंट नहीं लग रहा है एंड ऑल, तो यूपीएससी एक एस्केप ऑप्शन बन जाता है सबके लिए. सो हाँ उस हाँ टाइम हाँ. आपने मतलब ये कैसे डिसाइड किया दैट नहीं यार यूपीएससी नहीं, बिजनेस स्टार्ट करते, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप आप करोगे तो फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. यूपीएससी में चलो ठीक है, टाइम मिलता है 2 साल 3 साल, नहीं हुआ नेक्स्ट अटेम्प्ट नेक्स्ट, तो उस टाइम डेयरिंग कैसे लाने ये सब थे तो. व्हेन आई स्टार्टेड ना, जब मैंने कॉमर्स लिया, तो कॉमर्स हैज ओनली mainly two options. One is either you get a very good B school, primarily an IIM, or crack the CA. So I tried both and I failed in both. Then one option left was UPSC. UPSC, like you said. So UPSC रह गया, and UPSC is not just a exam that you clear it, you know. It's a way of living. It teaches you so many things. It teaches you a lot. I mean, that you can also implement even in your business, in your daily routine. So वो हिम्मत कैसे ही करने की, यार मैं बताऊं आपको, it is UPSC has the second most toughest examination in the entire world, you know, the lowest success ratio. You have to clear the 3 layers of the examinations. So यार किया मैंने 2 साल तैयारी, हुआ नहीं यार. मेरे को लगा कि नहीं हो पाएगा यार, नहीं कर पाएंगे. इतना डिसिप्लिन जितना इसमें चाहिए करने के लिए, मैं बार बार डेविएट हो जाता था ये बिजनेस को लेके. मैं बिजनेस हमेशा से स्कूल टाइम से कुछ ना कुछ बिजनेस करता रहता था, तो मैं डेविएट हो जाता था. मैं बोला नहीं यार, इसके लिए नहीं बनाओ, धंधा ही करते हैं. तो मैंने आई टुक द कैलकुलेटेड रिस्क. मैंने यूपीएससी छोड़ी नहीं उस टाइम पे. मैं पढ़ता था और साथ में ये बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया था. So now currently from these sorry, I got a call from you know, failing in the CA examination. Am I audible? Yes, yes. And in the CAT examination, now we are recruiting from IIM and IIT, and I have a team of CA situation. And currently I think 4 5 well-known IAS and IPS are following me on Twitter, got verified. So it's win-win situation. I think it's a learning experience if you fail also. आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड होंगे, लाइक हम मेरे बच्चे ने यूपीएससी नहीं किया. Of course they are. Of course they are. So there's a question from the chat box. What unseen opportunities did you see that resulted in making a startup a huge success? Sorry, can you please repeat? What unseen opportunities did you see that resulted in making your startup a huge success? Opportunities हर धंधे में होती है. I think you know, we have always seen the big, I mean, giant companies like you know, McDonald's, Burger King, Starbucks, you know, Coca-Cola. So these are the, you know, giant companies in F&B. Not just in the F&B, the entire domain of the company. These are the big companies, and all belongs to West. So I thought, okay, why not us Indians? We have a good market, a comparatively big market uh, than West. So I thought, okay, why not us? Why हम लोग क्यों ये धंधा नहीं कर सकते, जो हम लोग के पास इतना बड़ा मार्केट है इंडिया के पास में. It's very it's not that easy also, it's not that tough also कि आप कर नहीं सकते. You know, I realized that I can do business when I was in school. तो हम लोग क्या करते थे, what I used to do is, मैं सबसे पॉकेट मनी अपने दोस्तों से ले लेता था, और फिर वही पॉकेट मनी से आई यूज टू बाय द सेकेंड हैंड मोबाइल. सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदता था, और एक नोवेल्टी मार्केट था, उससे सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद के हम लोग वापस में सबको चलाने को देता था, और सेल भी कर देता था मैं प्रॉफिट में दैट मोबाइल. सो आई गॉट टू नो दैट आई कैन गेट द फंडिंग इजीली एंड आई कैन मेक प्रॉफिट. सो एट दैट टाइम ऑल्सो हम मेरे को मालूम पड़ गया था कि आई कैन डू बिजनेस. फिर उसके बाद में मैं अपने यू नो आंसर शीट चीट कराने के लिए भी मैं टैटूज वगैरह ले लेता था, या फिर कुछ भी, एक पेन, नटराज की पेंसिल वगैरह, जो भी एक आंसर का मतलब. सो आई गॉट टू नो कि आई कैन ट्रेड इन दीज थिंग्स. So बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी तो आई हैव सीन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एंड इट इज देयर. यू नो, बिजनेस तो आई मीन उससे ज्यादा बड़ा तो कुछ है ही नहीं. Everything comes inside it.
सर जैसे Yeah, आपने so कहा ना that कि इनिशियली आप मतलब वो अपना पहले से बिजनेस करते आ रहे हो सब कुछ, तो सर इनिशियली अगर आप रिलेट करो तो मतलब जब अपन सड़क पे उतरते हैं ना सर, तो वहाँ का माहौल अलग होता है कि आप बिजनेस करने का एक तरीके से एक सेल्समैन टाइप वाला, कि आप 1 to 1 डोर टू डोर जाके मतलब इस तरह अपना बिजनेस कर रहे हो तो सामने वाले ट्रेडर के थ्रू। बट सर उसी बिजनेस को मान लो जो आपका उससे एक फ्रेंचाइज बनाने में या फिर उसे इस लेवल पे नेशन वाइड इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए मतलब आपको एकदम उसे ऑफलाइन से उसे थोड़ा ऑनलाइन और इस तरह लेके जाना पड़ता है ऊपर। सो सर उस टाइम आपको मतलब कैसे वो करा आपने ना मैनेज ये सब, क्योंकि एक जो बंदा ऑफलाइन सड़क पे काम कर रहा है उसे एकदम लेके जाने में सर मतलब बहुत डिफिकल्ट टाइप रहता है ना, तो तो जो आदमी सड़क पे रहता है ना भाई, उसको मार्केट की नॉलेज ज्यादा रहती है। घर पे रह के मार्केट की नॉलेज इतनी ज्यादा रहती नहीं है। मार्केट में देर आर एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स विच अफेक्ट्स अ सिंगल प्रोडक्ट व्हेन यू सेल इट। तो हम लोग जब पहली बार मार्केट में उतरे तो वी हैव सीन द रिजेक्शन। हम लोग फ्री में चाय पिलाते थे, लेकिन फ्री में भी लोग चाय नहीं पी रहे थे। लोगों को यकीन ही नहीं था कि फ्री में लोग कोई चाय पिला सकता है। क्यों पिला रहा है फ्री में चाय? जरूर कुछ खराब होगा इसमें। So we have went through the rejections also. We have went through, you know, जैसे कि मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई, पुलिस गुंडे, we have gone through everything. तो लाइक कुल्हड़ जो टेराकोटा का, आप जितना पकते हो ना, जितना आंच में पकते हो, जितना आप पकते हो उतना ज्यादा मजबूत होते जाते हो। तो जब हम लोग को सेल करना रहता था ना, क्योंकि जो भी ऑफलाइन आउटलेट खुलेगा वो तो मार्केट में खुलेगा, तो हम लोग को पता था कि मार्केट में क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं एक आउटलेट खुलने के लिए। तो जब आप एक आउटलेट अपना अच्छा चला लेते हो, 2 आउटलेट चला लेते हो, तो आप फिर आपको बताना बहुत ईजी रहता है। 0 to 1 इज द की। आपको एक मैनेज करता है ना, एक आप सीख गए ना, तो आप हजारों मैनेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक को ही पकड़ के चलना रहता है। तो उस एक के लिए हमने बहुत मेहनत की। देन द स्टोरी वेंट वायरल, यू नो। एक आउटलेट से सेकेंड आउटलेट जब हमने दिया, फ्रेंचाइजी दिया, आप बोलो डिजिटली बहुत जरूरत है। देयर इज यू नो ह्यूज कंपटीशन एंड रूथलेस कंपटीशन। आपको डिजिटली बहुत एक्टिव होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, अगर आपकी शॉप, आपने किसी को फ्रेंचाइज दिया ना, उसकी चल गई ना, तो अपने चाचा मामा फुआ साड़ू फुआ किसी को सबको बताएगा वो। और वो लोग भी जो भी अनएम्प्लॉयड होंगे, जिसको भी एक्सपैंड करना होगा, वो आपके पास आएंगे, या फिर वो आपको रेफर करेंगे कि भाई आप इनके साथ रहो, आप यहाँ पे इनके साथ करो। सो वी गॉट दिस काइंड ऑफ नेटवर्किंग वेयर इन, कि एक हमने आउटलेट चलवा दिया किसी का अच्छा, तो वो उनके ही रिश्तेदार, यू नो, फॉर एग्जांपल फ्रॉम कनाडा, वी आर कमिंग इन दी 10 मोर कंट्रीज। तो ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि वी डिड वेल इन दी ग्राउंड। सड़क में अच्छा काम किया भाई, दुकान सड़क में चलेगी ऑफलाइन। और एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में से। There is a perception that Kulhad chai would taste best when processed through old traditional methods, and taste would take a hit if process of making it is somewhat mechanized. So people still prefer the local Kulhad chai seller instead of a franchisee. So what's your take on that? Like local चाय वाला जो होता है, जो ऐसे गाड़ी लेके होता है रोड साइड पे, तो कुछ लोगों का परसेप्शन है कि वो वहीं से चाय लेंगे, वो ऐसे फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल से नहीं लेंगे. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? कुछ लोगों से तो मुझे दिक्कत ही नहीं है, कुछ लोगों को तो हमने छोड़ ही दिया, कुछ लोगों को तो हम ध्यान ही नहीं देते। हम लोग बहुत में ध्यान देते हैं। So, as I said, we don't give a shit about the class or the few people. We are focusing on the masses. So, हम लोग का जो मेन है ना, हम लोग का जो टर्नओवर है, क्योंकि the product size, the ticket size is very less. So, we have to focus on the masses. और as recently अभी किसी भाई ने बताया कि अच्छी भीड़ लगती थी, क्यों लगती थी, तो we are focusing on that only. अगर किसी को it's a big market, it's a very big market. अगर कुछ लोग छूट भी रहे हैं ना, तो हम लोग को उन पे फोकस करके टाइम जाया नहीं करना है। वी आर फोकसिंग ऑन द मासेस। तो हम लोग के, हमारे जो कस्टमर्स है ना, जो हम लोग ऑलरेडी कस्टमर्स, वी हैव टू फोकस ऑन द रिटेनिंग देम इंस्टेड ऑफ कम यू नो ड्रैगिंग द न्यू New customers. We are working on that as well, but currently we have to retain the customers which we having. So that is the main priority. So, और एक क्वेश्चन है, like I'm really interested in this one. So, what are your plans of opening an outlet in Varanasi? We really want one there. We are coming in the अस्सी घाट, by the way, and probably जहाँ पे आपका IIT BHU में एक कहीं पे CCD था, है, I don't know. So I've heard about from our R&D team that we are coming there also very soon.
excited for that. सो सर व्हाट्स योर प्लान, मतलब आप जैसे अभी फिलहाल स्नैक्स और बेवरेजेस कर रहे हैं, सो आगे जाके देखने को मिलेगा कि चाय सुट्टा बार एक रेस्टोरेंट भी है, फिर सिर्फ अभी इसी पे फोकस करते हुए आप हम लोग भाई डिफरेंट पैटर्न्स में आएंगे, लेकिन एक पैटर्न के अंदर, एक रूफ के अंदर बहुत सारी चीजें करने से ना उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीजें अगर रख देंगे तो किराने दुकान हो जाएगी, तो फिर हर चीज मिलेगी। तो currently one product, मतलब one business model with one product keeping in our mind, कि जैसे चाय के साथ में आने वाले फास्ट फूड। सो बेसिकली चाय सुट्टा बार इज a QSR model, quick service restaurant. So you get go inside that and you will get snacks and चुटपुट वाली चीजें along with the tea you will get immediately. Whereas the fully fledged fine dine restaurant, we are working on it. We are coming with one non-veg restaurant जिसका नाम है दो बोटी चार रोटी. So we are coming with this also. Anyone else wants to ask questions from the attendees? Yes, एंड सर वो hello भैया. आपने जैसे My name is Akshay, and I wanted to ask you, out of many ideas that you may have come up with, how do you choose which idea you will be giving all your energy for the next many years? Like, this is a very big commitment. So, See, we have to work on the demand centric ideas. Basically आइडिया में एक वाइब तो होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो आपको पसंद हो वो आप बेचो. फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट ड्रिंक टी, नीदर आई लाइक इट, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम सेलिंग इट. व्हाई? बिकॉज पीपल आर लाइकिंग इट. जिसकी डिमांड है वो चीज बेचेंगे ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे, if my market is झुग्गी झोपड़ी, for example, then I have to sell the stone rather than gold, even if I like gold, right? गोल्ड मुझे कहाँ बेचना पड़ेगा? मेरे को उसके लिए पर वहां जाना पड़ेगा, हीरा नंदानी तरफ जाना पड़ेगा, धारावी में नहीं बेच सकता मैं. सो जो भी आपका आइडिया हो, मेक श्योर कि वो आपको सेल्फ, आप उसको क्रिटिसाइज और इवेल्युएट कर लो. डोंट लव योर आइडिया. आई मीन, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इनफ व्हाइल चूजिंग योर आइडिया. सो आप वो समझ लो कि ये मार्केट में इसमें इसकी कितनी औकात है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा. सो आई थिंक evaluating your idea is very important before going it, but you have to implement your idea ASAP after evaluating. आप evaluation में, आप evaluating करने में ज्यादा टाइम मत लगाइए. लोग कई रहते हैं ना, evaluate ही करते रह जाते हैं. उसको implement कर दो, मार्केट खुद भी evaluate कर देगा कि कितनी औकात है आपके आइडिया की. अगर आपका आइडिया अच्छा होगा तो चलेगा, नहीं तो उठा के फेंक देगा आपके आइडिया को. thank you, भैया. Hello, sir. Hello. Sir, I have one question. If any other company or startup tries to use the same name, that is Chai Sutta Bar, with some modifications, then what will be your next steps, or how will you deal with it? केस ठोक देंगे उनके ऊपर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का. पहली बात तो nobody can use our name because we are almost registered in all the trademarks, not just here in India, but we have the sort of global trademark जिसको मैड्रिड कन्वेंशन भी बोलते हैं. मैड्रिड कन्वेंशन के थ्रू हम लोग का नेम रजिस्टर्ड है, नॉट जस्ट इन वन क्लॉज, इन दी मेनी क्लॉजेस. और कोई नाम यूज करता है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं. फ्रैंकली हम लोग का नाम, देयर आर 15,000 एक एस्टिमेटेड लोग हैं, आउटलेट्स हैं. छोटे छोटे जुग्गी में लोग लिख लेते हैं नाम, एडिडास का जैसे लिख लेते हैं वैसे. सो वी अलाउ दीज काइंड ऑफ पीपल जो हम लोग का नाम यूज करते हैं. ठीक है, सबकी रोजी रोटी चल रही है, इट्स फाइन. लोग चाय सुट्टा बार दूध डेयरी करके भी है. सो देयर आर एन नंबर ऑफ तरीके से लोग यूज करते हैं. लेकिन जिसकी अगर जो हम लोग का बहुत ज्यादा नाम यूज करके, पूरा पूरा मॉडल यूज करके हूबहू कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता है, वी सेंड देम नोटिस, तो वो फिर नाम चेंज कर देते हैं. सो नोबडी कैन यूज आवर नेम, बट one guy used our name there in Pakistan, Karachi, the same name, चाय सुट्टा बार. तो हम लोग ने उसको भी वहाँ पे नोटिस भेजा, बट बिकॉज पाकिस्तान को आप जानते हैं, सो उन्होंने चेंज नहीं किया. बाकी इंडिया में कोई भी हमारा नाम नहीं यूज कर सकता. सर एक वो होता है ना दैट एट एन अर्ली एज इफ यू स्टार्ट, तो एक एज फैक्टर रहता है कि हाँ अगर हम पिच भी करते हैं तो सर एक कहीं ना कहीं आ ही जाता है कि यार एज की वजह से थोड़ा बहुत सीरियस,
तो सर मतलब उसे कैसे डील, मतलब कितनी भी कोशिश कर लो सर अपना, लेकिन कहीं ना कहीं वो फैक्टर आता है कि हाँ आपकी एज कम है, बट तो उस वजह से थोड़ा सीरियस ना लेने, बट ये आपका आते ही सुपर है। सक्सेसफुल है, तो वो नहीं आपने कैसे ओवरकम करा? आते ही आता है यार, वो आते ही आता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, हम एक I5 समिट कराता है IIT और IIM इंदौर में। तो उन्होंने I5 समिट कराई। पहली बार जब हम लोग वहाँ पे पिच करने गए तो हम लोग की जो पीपीटी थी वही रिजेक्ट कर दी। फिर हम लोग ने उनसे बहुत अच्छे रिलेशन बनाए। सेकंड टाइम में वी गॉट टू, हम लोग को पिच करने का मौका मिल गया था। मैंने स्टेज में चढ़ा, स्टेज में हम 30-40 स्टार्टअप थे, मैं चढ़ा, मेरा सेकंड लास्ट कुछ पिच था, मैंने फाड़ दिया वहाँ पे। यू कैन सी दैट इन दी यूट्यूब ऑल्सो। एंड वी पिच्ड फॉर 30 CR। और वहाँ पे कोई भी सब हम लोग को स्पीच देते देते इन्वेस्टर्स ने बोल दिया था कि सेंड योर डेक, हम लोग वी आर रियली इंटरेस्टेड। हम लोगों ने फंडिंग नहीं लिया, आज भी नहीं ली। क्या होता है, एक और स्टोरी बताता हूँ। हम लोग IIM में रिक्रूटमेंट के लिए गए थे, तो वहाँ पे जनरली हर कंपनी से 1 या 2 HR आते हैं, मोस्टली सबसे ज्यादा। हम लोग 5-6 लोग चले गए थे रिक्रूट करने। तो वहाँ पे हमसे पूछा कि एक एक रूम अलाउड कर रहे थे, तो देयर आर लेस चेयर्स, तो वी आज देम फॉर फ्यू मोर चेयर्स। तो बोले क्यों इतने सारे लोग आप लोग क्यों आए रिक्रूट करने के लिए? सो ऐसा कि हम लोग के पास में 2-3-4-5-5 साल का एक्सपीरियंस ना, तो क्यूमुलेटिव हम लोग का 30 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा जितना एक एक आदमी के पास में। सो ऑलवेज यू कैन आपके पास अगर अनुभव कम है ना, अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है, सो यू कैन ऑलवेज हायर फ्रॉम द मार्केट, हायर गुड पीपल विद द गुड नॉलेज, जिनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। आप मेंटर ढूंढ सकते हो जो अच्छे अनुभव, जिनके बहुत अच्छे टाइम से इंडस्ट्री में है एक्सपीरियंस। सो एज इज ऑलवेज देयर अ फैक्टर। पीपल सी यू एज इन एक्सपीरियंस पीपल। तो वो लोग सोचते हैं कि आप एक्सपीरियंस इतने कम हो तो आपके ऊपर पैसा नहीं लगाएंगे। ये सारी चीजें आती हैं आप मार्केट में, देयर इज नो डाउट इन इट। लेकिन आप अपने आप प्रूव करिए ना। मैं जब स्टेज में चढ़ा तो मेरे पास एक्सपीरियंस कम था, लेकिन मेरे पास 11 आउटलेट थे, प्रोटोटाइप भी नहीं था मेरे पास, रनिंग आउटलेट थे, लोग पिच कर रहे थे अपने स्टार्टअप के आइडिया के लिए, मैं प्रूव कर चुका था। सो आप प्रोटोटाइप के साथ उतरिए, आप प्रूव करिए उनको। तो मार्केट में ना लोग आपके ऊपर यकीन नहीं करेंगे जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे। सब बतौलेबाजी लोग समझते हैं कि लोग बोल के चले आते हैं, और लोग बोलते भी बहुत है मार्केट में आजकल। बतौलेबाजी का ज्यादा जमाना है, काम लोग कम करते हैं। सो प्रूव योरसेल्फ। यस। Any questions from the attendees? और सर एक और क्वेश्चन होता है, जैसे अपना आपका अपने जो जोन से भी फ्रेंचाइजी वगैरह इस तरह के होते हैं, इन सब में इनका जो, अगर आप इसमें ऑफ स्ट्रीट, मतलब ये अगर हमारी जो सड़क पे दुकान है सब कुछ इन सबको हटा दें, तो एक कंपनी का जो इवैल्यूएशन होता है वो मतलब एक तरह से सिर्फ ऑन पेपर इवैल्यूएशन होता है। मान लो अगर 100 करोड़ 200 करोड़ का भी उसका इवैल्यूएशन है, तो एज अ CEO या फिर फाउंड चेयरपर्सन वगैरह सब लोग अपनी सिर्फ सैलरी निकालते हैं उसमें से। बट लेकिन वो जो इवैल्यूएशन होता है वो क्या सर, मतलब फेक इवैल्यूएशन होता है, मतलब ये क्या होता है, मतलब ऑनलाइन सिर्फ ऑन पेपर इवैल्यूएशन? यार इवैल्यूएशन लोग निकालते हैं फंडिंग के टाइम पे, बेसिकली कि आपकी फंडिंग कितनी होगी। और मुझे लगता है कि फंडिंग आपको एक इन्वेस्टर देगा, एक VC देगा, या फिर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स देंगे। वेयर एज आपका आइडिया तब वैलिडेट हो जाता है जब आप मार्केट में आपका कस्टमर आपको पैसा देता है। अगर आपको आपका कस्टमर पैसा दे रहा है ना, तो आपका आइडिया वैलिडेटेड है भाई। उसके लिए वैल्यूएशन वगैरह कंपनी की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी वो वैलिडेटेड आइडिया आपका। कई लोग ना फेक वैल्यूएशन करते हैं, देयर इज नो डाउट इन इट। लोग फेक वैल्यूएशन करते हैं, लेकिन आप बबल बना के क्या करोगे? आई मीन कोई सेंस नहीं है ना। आपका धंधा पुख्ता चलेगा जब वो कस्टमर्स के थ्रू वैलिडेटेड होगा भाई। शुद्ध गणित है, कस्टमर्स के थ्रू वैलिडेटेड होना चाहिए। कस्टमर्स अगर आपको पसंद कर रहे हैं, आपका धंधा प्रॉफिटेबल है ना, तो आपकी वैल्यूएशन करोड़ों में है। आप बेचोगे कुछ भी उसका स्टेक बेचोगे, तो आपको पैसा मिल जाएगा। लोग आपके ऊपर पैसा लगाना स्टार्ट कर देंगे, लगा देंगे। लॉस मेकिंग होगी तो नहीं लगा देंगे, नहीं लगाएंगे। और मुझे लगता है कि फेक वैल्यूएशन तो नहीं करना चाहिए भाई। वैल्यूएशन तो रियलिस्टिक होना चाहिए, फेक वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, फायदा नहीं है उसका। Sir, एक question है chat box में से. Out of many ideas that you may have come up with, how do you choose which idea you will be giving all your energy for this next many years? Because it's a big commitment. I think I've already answered it, because it is validated in the market.
we have seen I have chosen चाय because I have already seen that हम लोग क्या किए थे, मैं जब यूपीएससी के लिए यहाँ से इंदौर आया था दिल्ली से, तो मैं और आनंद 50-50 रुपए का पेट्रोल भरवा के बाइक में घूमते थे, कॉन्ट्री करके 50-50 का हम लोग घूमते थे मार्केट में चल क्या रहा है. एंड वी हैव सीन इन एवरी गली एंड नुक्कड़ देयर इज अ चाय वाला. सो वी गॉट टू नो कि यार चाय का मार्केट तो है, चाय में धंधा है, और ये सब गुमटी, सब छोटी छोटी चाय स्टॉल चलती हैं, तो हम लोग क्यों नहीं चला सकते. इट इज वेरी इजी, कैश का धंधा है, तो बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं. अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. तो थोड़ा सा एज पॉइंट एक्स्ट्रा हम लोग को ऐड करना था, तो वी एडेड, हमने अदर स्नैक्स. हाँ स्नैक्स और उसके फ्लेवर्स ऐड कर दिए, चाय की प्राइस कम कर दी, एम्बियंस दे दिया. चाय सुट्टा बार हमने बनाया था, तो बार हमने इसलिए भी बनाया था क्योंकि एक तो बार में जनरली चीजें बहुत महंगी रहती हैं, हर चीज, तो हर स्टूडेंट, तो फिर उसके बाद में हमारे जो सिंगल लड़के रहते हैं ना, उनको स्टैग एंट्री भी नहीं रहती है बार में, वेयर इन चाय सुट्टा बार एवरीबॉडी कैन कम. तो हमने इसलिए भी बार का पूरा बना के उसमें पूरा म्यूजिक सिस्टम लगा के अच्छा बार टेबल वगैरह बना के सब किया था उसमें. सो द एज हमने कर दिया था. कुछ तो नहीं. सर और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसीजर एंड कॉस्ट फॉर टेकिंग अ फ्रेंचाइजी ऑफ चाय सुट्टा बार? I'm just have asking to this just for knowledge. Chat box. You just have to Google Chai Sutta Bar. You will get everything details there. Well, it depends. The franchisee fees depends from place to place, starting from 6 lakh rupees plus GST. And it is simple. If there is availability in your city or town, if there is a availability, if there is a demand, we are definitely going to give you the franchise. There's no doubt in it. For more knowledge, you can always call in the IVR system 6262-300-031. 62-62-3031. एंड सर एक वो मेजर रहता है दिमाग में डाउट, मान लो लाइक आपका जैसे चाय सुट्टा बार एंड ऑल, अपन देखते हैं कि सर जैसे मोमोज वाले वगैरह इस तरफ, उसका भी था एक, उसने भी 1200 आउटलेट्स कर लिए पूरे इंडिया में एंड ऑल, इस तरह करके सर होता है. तो मतलब उसमें एक रहता है दिमाग में डर कि यार पहले से ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड इसके वो हैं आउटलेट, जैसे आपका हो गया 2-4 और इस तरह करके चाय, तो सर उस पर्टिकुलर उस डोमेन में जंप करना मार्केट में नए बंदे के लिए, तो स्टिल उसके लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं, या फिर मतलब ये रहता है कि नहीं यार उस डोमेन में थोड़ा डिफिकल्ट है जंप इन करना बिकॉज ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड उसमें. स्टारबक्स था, डरना क्यों, जिगरा चाहिए रहता है भाई धंधे के लिए. मैं आपको एक स्पष्ट बात बताता हूँ आपको, करेज बहुत इंपॉर्टेंट है धंधे के लिए, क्योंकि there's not just one thing about the business model which scares you. There's n numbers in the big giant players in the market जो आप एक बार में आपके ऐसा बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप में क्या अलग है. पैसा हमेशा घोड़े पे नहीं लगता, जॉकी पे लगता है. मेरे पे पैसा लगेगा, मेरी कंपनी पे नहीं लगेगा, क्योंकि मैं चला रहा हूँ. तो मेरे में क्या अंतर है, मैंने इवॉल्व किया. आई लर्न हाउ टू sustain in this cutthroat competition. I have struggled and I have competed with the small gumti walas with the same price line. So nobody can sell cheaper than us. Let the Tata come, let the Ambani come. We'll see them in the market. So जिगरा हमेशा बना के रखना and study your product. आपका प्रोडक्ट जो है आपसे बेहतर कोई थोड़ी जान सकता है, और आपका प्रोडक्ट आप डिजाइन कर रहे हो जो आप कस्टमर्स के हिसाब से, तो आपको कस्टमर अगर वैलिडेट कर दिया, लेट द पीपल कम, विल सी इन द मार्केट. ऐसे हम लोग के साथ भी हुआ. तो पीपल स्टार्टेड कमिंग. फॉर एग्जांपल यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन एंड देयर आर n number of other players also in the market. We'll see in the market. We have crossed around 200 outlets, and the people those who are coming right now, started right now, is a bubble, and we'll see in the market. Okay. Yes. Next question. Can you tell us more about Anubhav and real estate? Well, Anubhav and real estate, Anubhav Anand real estate. It is basically me and Anand started. So there is Anubhav Anand, experience happiness. The tagline is, हम लोग का इंग्लिश में ये अनुवाद होता है. So we always wanted to do a real estate business because उसमें हम लोग को बहुत confident था
कि हम लोग कर सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट 3 लाख रुपए तो स्टार्ट हो नहीं सकता था. सो हम लोग ने चाय सुट्टा बार स्टार्ट किया, एंड चाय सुट्टा बार बिकेम द मीडियम टू रीच दैट गोल ऑफ अनुभव आनंद रियल एस्टेट. And currently we are doing the Anubhav Anand real estate also. वो बहुत अच्छा रहा हम लोग के लिए रियल एस्टेट का काम, एंड स्पेशली इन द पेंडेमिक टाइम इट वाज अमेजिंग दैट वी ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड आवर बिजनेस, क्योंकि कोविड के टाइम पे फूड का तो बिल्कुल चौपट हो गया था काम. तो टचवुड रियल एस्टेट so we are working currently Anubhav Anand real estate in Indore. Am I audible? Yes, sir. बीच में अटक रहा था पर you're audible. So we are working around in 30 projects in Indore for the Anubhav Anand real estate, whereas we construct houses, residential houses and the commercial also. तो सर सिंस अनुभव आनंद जंप्ड इनटू रियल एस्टेट, तो सर बाद में देखने को मिलेगा कि चाय सुट्टा बार इज फॉलोइंग दैट मैकडॉनल्ड्स बिजनेस मॉडल. Touchwood यार, hope so, क्योंकि it is amazing strategy of McDonald's that we can also can do that. हम लोग ने टचवुड हम लोग ने रियल एस्टेट भी तब चालू किया था जब डीमोनेटाइजेशन आ गया था, जब रेरा आ गया था, जब ई डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रियल एस्टेट आ गया था. आप हम लोग के प्लॉट में जब जो हमने पहला प्रोजेक्ट किया था, हम लोग के पास पैसे तो भी इतने नहीं थे, तो हमारा एक मेरा दोस्त था, उसका प्लॉट था, उसी के प्लॉट में हमने एक दूसरा कंस्ट्रक्शन वाला एक बिल्डर पकड़ा, बोला ये प्लॉट मेरा है, आप बनाओगे, मैं बेचूंगा, और जो भी प्रॉफिट होगा हम तीनों में बराबर बराबर डिवाइड होगा. सो हमने पहला प्रोजेक्ट ऐसा स्टार्ट किया था रियल एस्टेट का, विद दीज मैनी हर्डल्स, एंड वी सोल्ड इट फॉर प्रीमियम. with the very first project was very amazing. I mean, इतना प्रॉब्लम आने के बाद भी हम लोगों ने बेचा था, तो आई थिंक हम लोग रियल एस्टेट में अच्छा कर रहे हैं और आगे भी चल के अच्छा कर सकते हैं. Any more questions from attendees? Like कोई और questions हो तो बता दो, like we'll have the last question then. सर ये जो रियल एस्टेट का आइडिया था, तो सर ये वेरी इनिशियल बिगनिंग से था, या फिर ये था कि यार हर बिलियनियर की वेल्थ सबसे ज्यादा बिलियनियर्स ने बनाया है रियल एस्टेट ने, तो उस वजह से आपने जंप? यार रियल एस्टेट स्टार्टिंग से रियल एस्टेट का रीजन है कि बिकॉज द सिंपल इकोनॉमिक्स का रूल है यार कि देयर इज लिमिटेड supply of land. This land is limited, and the demand is huge, and it is still increasing day by day. Growing population, it increases day by day. And I personally loved, real estate from the beginning. I don't know why, but वो देख के ना, वो नहीं जमीन खूब सारी देख के पीछे गिटार बजने जाता है और वो फीलिंग आने लग जाती है. So that feeling used to come from the very beginning. So I think वो उसने बहुत ट्रैक किया, and of course इकोनॉमिक्स तो है ही इसमें कि सिंपल के रियल एस्टेट स्टैग्नेंट भी इंडिया में बहुत रेयर ही होगा, कभी होगा तो लेमन्स ब्रदर वाला केस नहीं आएगा अमेरिका वाला, जहाँ पे रियल एस्टेट इतना ज्यादा डेप्रिशिएट होगा. मेरे को लगता नहीं इंडिया में कभी होगा, क्योंकि ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन एंड लिमिटेड सप्लाई है जमीन की, तो इसलिए भी था. और वो तो है ही, बिलियनर तो चाहिए, जमीन तो बिना काम ही नहीं चलता भाई. तो सर नॉलेज गैदरिंग मतलब क्या मेनली वी शुड कहाँ से सर गैदर करें? मतलब ये है कि जहाँ से जो फंसे, चाहे आपका जो स्टॉक है, चाहे वहां से हम नॉलेज गैदर करें, जो बायोग्राफीज और सबकी लोगों की. नहीं यार, वो मेरे जैसे लोगों मतलब आई मीन ठीक है, आप एक इनसाइट्स मिल जाती है, एक थोड़ा सा हो सकता है मोटिवेशन में. आप मेक योर ओन जर्नी, मेक योर ओन कंटेंट एंड नॉलेज. आप जाओ ना, आप काम करो मार्केट में. मेरे से लोगों से ज्ञान लेने से क्या मतलब? खुद जाओ ना, आपको ज्यादा बारीक वाला ज्ञान मिलेगा, मेरे से भी ज्यादा फाइनेस्ट ज्ञान मिल सकता है, और भी अच्छा. मैं कुछ नहीं, मेरे से 1000 गुना अच्छा कर सकते हैं आप लोग. तो आई थिंक के आपको खुद ही अटेम्प्ट करना चाहिए मार्केट में जाके, एंड डोंट वरी अबाउट द फेलियर यार. मैं यही बोलता हूँ, डोंट वरी अबाउट द फेलियर. आप काम करिए मार्केट में, गेट द नॉलेज, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा. उससे ज्यादा तो मजेदार वाला काम ही कोई सा नहीं हो सकता. Go in the market,
hustle and turn your struggles and sad stories into the success story. Yes, sir. Any last questions? Like, we'll take one more question if anyone has, or we'll have the last question. I think we should proceed for the last question. Any advice you would like to give to people who are looking to go into the same type of path as yours, or any other general advice for someone who is trying to become an entrepreneur? चिल मारो सबसे पहले तो, बिकॉज वी आर इन द बेस्ट एज. आप जिस एज में हो सबसे धांसू एज है. चिल मारो, खूब सारी मस्ती करो, लर्न with fun and try to innovate. If you want to do something in the entrepreneurship, start doing right now. I mean, कुछ भी करो, आप स्टार्ट करने लग जाओ. खोजी दिमाग होना चाहिए, कीड़ा होना चाहिए कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, सीखना है. करते रहो. कहीं ना कहीं लिंक आपकी ऐड होती जाती है. आपका वो जो लर्निंग का जो पूल है ना, वो पाइल होता जाता है. और जब भी आप स्टार्ट करते हो ना, तो वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं ऐड होके आपको बहुत बेनिफिट मिलती है. स्टार्ट अर्ली. इट इज द बेस्ट एडवाइस आई थिंक, कि आप जल्दी स्टार्ट करो तो आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलेगा. फेल जल्दी हो सकता है जल्दी, फेल हो गए तो वापस ट्राई करोगे तो जल्दी आपको सक्सेस मिलने का वो हो सकता है. और फिर एक चीज ये है कि यार करेज रखना, जिगरा रखना कोई भी चीज के लिए बहुत जरूरी है. अगर आपके में करेज नहीं होगा ना, तो आप पहली बात तो स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे. सोच रहे हो अरे ये हो गया तो, अरे हो गया ना यार, चलेगा. अभी तो क्या है, फेल हो जाओगे तो इतना चलेगा. एकदम से थोड़ी 30 साल, अभी आपके पास में 30 साल होने में बहुत टाइम है. 30 साल 40 साल होने में यू हैव द बेस्ट रिस्क एपिटाइट. अभी आपका ऐसा रिस्क एपिटाइट है, पचा जाओगे सब चीज. 2-3 लाख रुपए क्या पापा मम्मी नहीं झेल लेंगे क्या? आपके झेल लेंगे. मेरे भी मम्मी पापा झेल लेते. 3 लाख रुपए आनंद के जो लगे थे, वो अगर खराब हो जाते तो 1.5 लाख रुपए में पापा दे देते. हो जाता फुट से, डांट पड़ती, गाली पड़ती. आई हैव ट्राइड, है ना. तो आई थिंक कि एक जिगरा होके काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप दौड़ेंगे ना, तो यू माइट फेल. अगर आप दौड़ोगे तो हो सकता है आपकी हड्डियां टूट जाए, गिर जाए आप, लेकिन आप रिपेयर हो जाओगे. अगली बार जब वो जो पड़ाव आएगा, वो नाला आएगा, वो गड्ढा आएगा, तो आप उसको देख के क्रॉस कर लोगे. उस चीज को आपको याद रहेगा. टेक कैलकुलेटर रिस्क, रील की हड्डी बचा के रखो, और बाकी दौड़ते रहो तेज तेज. आई होप एंड आई विश कि आपको अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचे, मेरे से लाख गुना अच्छा करें. थैंक यू सो मच सर. सर एक चीज ही पूछनी थी, जैसे सर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, तो आपको दिखा यार सड़क वाला जो है अपना आउटलेट खोल के इस से अपना सर ये है जैसे अपना टेक्निकल वो है बैकग्राउंड, तो सर यहाँ पे जैसे अपना IIT-BHU का वो भी है एक जो माहौल एनवायरनमेंट है, वो है कि टेक्निकल बेसिस पे वेब डेवलपमेंट पे या वेबसाइट्स ऑल बनती हैं वो, और ऑनलाइन बिजनेस की तरफ सब कुछ, मतलब एक मेन जो विजन है यहाँ पे वो ऑनलाइन का है. बट सर मेरा यार कि नहीं, सड़क वाला ही काम है, चाहे कुछ भी करके सप्लाई कर दिया आगे टाइप उस तरह वाला सर. तो अच्छा है ना, आपको तो और अच्छा है ना. कॉमर्स यार, मेरे कॉमर्स से मत देखो. मैं तो कॉमर्स लिया था, पढ़ते कहाँ थे. पढ़ते होते तो सीए हो जाता ना, कैट हो जाती ना. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तो आपका अच्छा है कि आप ऑफलाइन अलॉन्ग विद ऑनलाइन इज डेडली कॉम्बिनेशन. इट्स अमेजिंग. आई मीन कि आप दोनों चीज कर रहे हो तो और अच्छा. टेक तो, बिना टेक के तो कोई भी चीज पॉसिबल ही नहीं भाई. आज के टाइम पे संभव ही नहीं है. अगर मैं पूरे ही ऑफलाइन रहता तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. एंटरप्रेन्योर को ना पानी जैसा होना चाहिए, हर आकार में ढल जाए वो. जब हम लोग का लॉकडाउन आया था, हम लोग कहीं नहीं जा पा रहे थे, तो क्या करते. हम लोग का शटर बंद हुआ, तो आई ओपन माय लैपटॉप, है ना. फ्रॉम मेनली 400 connections in the LinkedIn to 20,000 plus connection in LinkedIn. From 1300-1400 followers थे, 30,000 followers in Instagram. So आपको switch होना पड़ता है. From two outlets in the out of India, we have switched to 30 outlets across India in the COVID time, जब हम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन है. तो सो ऑनलाइन इज एड ऑन एडवांटेज भाई आपके पास में. आपको पास दोनों नॉलेज होनी चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए. टेक का तो बहुत अच्छा पार्ट, अगर आप टेक में हो तो इट इज एड ऑन एडवांटेज. बिना टेक के कोई फंडिंग देते नहीं आजकल, अगर आपका टेक इनेबल्ड स्टार्टअप नहीं है तो. Thank you Kush for asking the question. We'll end करते हैं अभी. Thank you so much sir for sharing your journey. अच्छा, बहुत काफी insightful था and inspiring भी था.
It was a pleasure listening about the journey of Chai Sutta Bar. This brings us to the end of the session. I now hand over the mic to Aditi Oja for the vote of thanks. Aditi? Thank you so much, sir. Like it was a really great session. Like we got some unique insight on your unique marketing strategy to unique problems that you faced while you're like starting up your business. On behalf of ESEL IIT BHU, I thank you for taking out time for us and giving the knowledge and experience about your entrepreneurship and business. And thank you all the attendees for making the session so interactive and engaging. And just to let you know, sir, that we are eagerly waiting for an outlet at SP or at IIT. We are coming up there very soon. Thank you so much, everyone. Take care and have a nice day, everyone. Thank you. Thank you for having me. Bye-bye. Take care. Bye, sir. बहुत अच्छा किया नक्षत्र। हाँ नक्षत्र बहुत बहुत मस्त। Thank you so much. हाँ एकदम मस्त सेशन हुआ आज का तो। मतलब मैंने सुना है सब। आगे से ना सेम फॉर्मेट रखेंगे अभी, मतलब अभी 2-3 लोगों का पैनल बढ़ा देंगे। फॉर्मेट भी अच्छा था, लाइक कन्या ने भी सजेस्ट किया, इंटरैक्टिव भी था सेशन। सर भी काफी सही थे, काफी ज्यादा सही थे। मैत्री थैंकिंग मेल का देख लेना आगे का। हाँ भैया, मतलब 5-6 बजे तक भेज दूंगी अभी मैं थैंक यू मेल।